Good evening, students. I hope you all are staying safe at home and following the instructions of the Government of India. I, Dr. Ravi Shankar V. Chaudhary, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering, Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar campus. Dear students, you all may be knowing today's topic. Our today's topic for this Facebook live session is Mechanical Engineering, a boon to serve the mankind post COVID-19. Now, I would request all the students to kindly post your questions so that we can have a very interactive session today evening. Yes. Naman Verma, student, has posted a question: how mechanical engineering branch is different from other branches? How mechanical engineering branch is different from other branches? Okay, fine. Naman, let me answer your question. Before that, I would like to go to the few the lines of history. Mechanical engineering is one of the oldest and broadest engineering discipline exist in the world. Mechanical engineering comes in a core branch in the sense all other allied branches are derived from this branch. For example, you may say automobile engineering, production and manufacturing engineering, design engineering, thermal engineering, metallurgical engineering, so on and so forth. It's a core branch, and it is not an illusion or imagination. The beauty of this branch is whatever you study, you are able to touch it, feel it, analyze it, and visualize also. Whatever you pursue in this mechanical engineering, whatever you study the topics, आप इसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ये ब्यूटी है इस ब्रांच की. A mechanical engineering is always called a versatile engineering, students. मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑलवेज वर्सटाइल इंजीनियरिंग कहलाता है. ये वर्सटाइल इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जॉब्स हमेशा एवरग्रीन होते हैं. इसलिए भी वर्सटाइल है कि इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इकट्ठा एक जगह हम लोग पढ़ते हैं. क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या इसके अलग सा पिलर्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? मेन ब्रॉडली इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है: डिज़ाइन, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल और मैनेजमेंट. डिज़ाइन होता ये है स्टूडेंट कि आप कोई भी कंपोनेंट दुनिया में बनी हो, पहले उसका डिज़ाइनिंग बनी है. डिज़ाइन 2 तरीके से बनती है, एक तो कन्वेंशनल, एक सॉफ्ट. क्यों डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है? डिज़ाइनिंग की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि कंपोनेंट शुड वर्क फॉर व्हाट इट इज़ मेड, और वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से भी बनती हैं. उसके बाद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है, वो मटेरियल्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होता है. तीसरा अहम पिलर है थर्मल इंजीनियरिंग. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 12वीं में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा. थर्मोडायनेमिक्स इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. विदाउट दैट नथिंग विल एग्जिस्ट. तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो थर्मल इंजीनियरिंग में आता है. चौथा पिलर है मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग मैन पावर हैंडलिंग, इनिशिएटिव्स, स्टार्टअप, कंपनी ओपन करना, एंटरप्रेन्योर बनना, इसमें बच्चों को सिखाते हैं. तो ये जो डिज़ाइन है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, थर्मल है और मैनेजमेंट है, ये अलग अलग एरियाज़ को इकट्ठा एक जगह जब हम रख के पढ़ते हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर कहलाता है. और इसलिए यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस है. आई होप आई हैव मेड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग and how it is different from other branches. Okay. Naman is there. Where does mechanical engineering stand in terms of digital technology in this lockdown? Okay, great.
Great. Naman, whatever the technology may be, to understand it and to execute it, it's always a difficult task. जहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आ रही है यहाँ पे, पूरा का पूरा ये जो एक्यूट पैंडमिक जो है हुआ है अभी लॉकडाउन के दौरान, मैकेनिकल इंजीनियर वॉज साइलेंटली बिहाइंड ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी. कैसे, मैं बताऊंगा आपको. द रिसोर्सेस विच द patients and the doctors were using, say for instance ventilator, say for instance आपके sanitization machines, gloves, mask, ICU equipments, everything was made by one or the other mechanical engineer. He has designed it, he has manufactured it, he has taken a due care of maintenance of it. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है. और एज ए टीचर अगर मैं बात करूं, वी आर ए कोर मैकेनिकल इंजीनियर्स. We never came across of digital technology as we had done in the past one and a half month, but we at a Systrek went to out of the box to learn many technologies for our students to make them to learn on digital platform. The domain of designing and analyzing through softwares also comes under the mechanical engineering branch. We have become a very tech savvy in the last few days. So we have not kept our student idle. हमने अपने बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा है इस पैंडेमिक में. हमने बच्चों को सारी चीज़ें जो है बहुत सही तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग देते हुए आए हैं. खास बात यह है, मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्सेटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस तरीके के सब्जेक्ट्स अपनी 4 साल में पढ़ चुके रहेंगे. और दूसरा, इसमें बहुत ही क्विक एडेप्टेबिलिटी का हुनर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमेशा होता है. बीइंग अ वेरी कोर बैकग्राउंड, it was difficult for us to cope up with the new technology, but we had done it. We had done it in a proper way. Okay, fine. Again, Naman is there. Can we see the change in mechanical engineering course after this crisis? Yeah, of course. Yeah, I too feel it. There should be a change in the curriculum, change in the way we think in the coming days. It is the need of the hour. बिल्कुल होना चाहिए. जैसे कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग लेवल पे इस चीज़ को ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट कोर, इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर. वी ऑल नीड टू go for the interdepartmental subjects. Say for instance computer programming, C++, mechatronics and other important areas we need to go through it apart from the core engineering branch. Or AICTE, RGPV has taken initiative to include some other subjects into the mechanical engineering, but yes, we need to go ahead than this, and Systek is always ahead in all these things. Already we have started it for our new entrants. From first year only, we give a blend of other department subjects. When they come to the final year, they will be quite acquainted with the interdepartmental subjects also. Yes, Systek is on the way ahead in many areas. Okay, fine. Next question, student. Next question, student. Okay. What is the transformation of mechanical engineering? What is the transformation of mechanical engineering from older days to new era? अच्छा, आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बहुत पहले से था और अब जैसा है और आगे कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं. ओके, I'll explain you with some very concrete and small examples. Since from the inception of mechanical engineering, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आया है. आप एग्रीकल्चर सेक्टर से एरोनॉटिकल तक जाइएगा, वहाँ पे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में.
सारे कंपोनेंट, सारे इक्विपमेंट, सारे जो चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल हम अभी आज की तारीख में कर रहे हैं, सभी जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स आप देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सारे जो है मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाया हुआ है। वॉट एवर द थिंग यू मे यूज इन डे टू डे लाइफ, यू मे कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। आप सीलिंग फैन को देखिएगा, जो आज का सीलिंग फैन है और पुराना सीलिंग फैन है, 20, 25, 30 साल पहले का सीलिंग फैन। पुराना फैन कैसा हुआ करता था? उसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी हुआ करती थी, उसकी मशीन बहुत ही स्टर्डी हुआ करता था, बहुत नॉइज उसका आता था, बहुत स्लो वो घूमता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ है? वी ऑल नीड हाई स्पीड, लो मेंटेनेंस एंड स्पीड शुड बी ग्रेटर एनफ। वो आज की तारीख में हमें मिल रहा है। ये क्यों हुआ, कैसा हुआ? ड्यू टू द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसर्च इन मटेरियल्स। आप एनफील्ड इंडिया का जो बाइक है, बुलेट है, उसका आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा। पुराने बुलेट कैसा था, आज का बुलेट कैसा है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आई हैं, वो आप देख लीजिएगा। दिस इज ओनली ड्यू टू दी मटेरियल्स। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई सेक्टर है, कोई एरिया है, तो वो मटेरियल्स है। आजकल तो कंपोजिट आ रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ भी मिल रहा है और वेट भी मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। ओके, फाइन। I thought I have answered your question. One more question is asking by a student. Okay. How different and best ME department SysTech is from other departments, other college departments? You want to ask pinpointedly how different mechanical engineering SysTech is there when you compare to others. Very nice question. You have asked a very pinpointed question. I would like to ask is, student, before answering this question, I would like to tell the work culture of our SysTech. We believe in 4 pillars. Okay, we believe in 4 pillars. The first one is excellent academics. We don't compromise in academics. The second one is rigorous industrial training, hands-on training. First one is excellent academics. Second one is rigorous industrial hands-on training. Third is genuine placements. Why I am telling genuine placement, students? Always your alumni are the asset of the institution, and our students have been placed in a very, very good company, but today onwards also they are in touch with us. That is asset of SysTech. And the fourth one is never ever compromising discipline ambience. On these 4 pillars, our institute is working rigorously. That is the reason why we are able to grow in a short period of span. Okay, now let me come back to your question. How different SysTech mechanical engineering is there when you compare to the other engineering colleges branches? We have many unique selling points, students. Always we work out of the way for our students to make them skilled in the tenure of 4 years. We have inculcated ourselves of 15 lectures per week instead of 4 lectures of RGPV curriculum. 4 लेक्चर की बजाय हम लोगों ने 15 लेक्चर अपने स्टूडेंट्स के लिए हर हफ्ते प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए देते हैं। उसमें एक स्किल को लेके चलते हैं, थ्रू आउट सेमेस्टर उसी को पढ़ाते हैं। ऐसे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक अगर हम कर रहे हैं हम लोग, उसमें स्टूडेंट 3 या 4 टेक्नोलॉजी में अपना बहुत बड़ा एक्सपोजर लेके आता है। एंड वेन एवर ही और शी गो फॉर इंटरव्यू, शी और ही विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, stand tall in the crowd. That is what is happening with SysTech students. So this will we are adopting since for many years. And the second one is industry oriented teachings, हम लोग trainings हम लोग करवाते हैं अपने students को, जैसा कि heat ventilation air conditioning है, internal combustion engines की है, mechatronics का है। ये अलग अलग कोर्सेज जो RGPV में नहीं है या फिर है तो भी वो इलेक्टिव में फाइनल ईयर में है, बहुत लेट हो चुका रहेगा हमारे बच्चों को, तो हम लोग इन कोर्सेज को लेके चलते हैं। HVAC, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, स्टूडेंट्स आजकल ये बहुत हॉट केक है मार्केट में। आजकल कोई अदर देन AC में नहीं रहना चाहता। चाहे आप मॉल्स देखिए, थिएटर देखिए, बैंक्स देखिएगा, आप जहाँ पे भी ऑफिस में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपके घर और ऑफिस के ACs नहीं देखने को मिलते हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज AC होता है जो डक्ट्स के थ्रू AC लोगों को एक पर्टिकुलर एम्बियंस में रखता है। वो चीज़ हमने शुरू किया है जिसमें हमारे बहुत बढ़िया ट्रेनर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स को मदद करते हैं।
और तीसरा हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो हम लोग हर साल नेशनल लेवल वर्किंग मॉडल कंपटीशन हम लोग करवाते हैं, जिसमें पूरी देश से वर्किंग मॉडल्स आते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा में कहीं साइंस सेंटर या फिर कहीं वर्किंग मॉडल कंपटीशन में गए होंगे आप में से कुछ, लेकिन यहाँ पे ना हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं और थ्रू आउट इंडिया से प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसकी मॉनिटर करने के लिए, जज करने के लिए IITs NITs की प्रोफेसर को हम लोग बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स साल भर जो थ्योरी पढ़ते हैं उनको एक दिन जो है प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल, प्रिंसिपल, लॉज, स्टेटमेंट, करोलरीज, इस पर डिपेंड करता हुआ एक वर्किंग मॉडल बनाने का हम लोग मौका देते हैं। इससे होता क्या है, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद उनको मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बाहा ऑल टेरेन व्हीकल को डेवलप किया हुआ है, फैब्रिकेट किया हुआ है, डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने। सिर्फ थ्योरी पढ़ना स्टूडेंट्स सीमित नहीं है। वी आर ऑल इंजीनियर्स, वी नीड टू हैव द एक्सपोजर ऑफ प्रैक्टिकल व्हेन वी गो इनटू द इंडस्ट्री। तो हमारे बच्चों ने दिन रात बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कम समय में, कम लागत में एक गाड़ी को बनाया है जो ऑल टेरेन व्हीकल कहता है। एक ऑन रोड व्हीकल होता है, एक ऑफ रोड व्हीकल होता है। ये ऑफ रोड व्हीकल है, ऑल टेरेन व्हीकल, जिसको हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था इंदौर में, बहुत प्रशंसा इसकी मिली है। तो ये भी हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। हम लोग ये दोबारा बना चुके हैं इस गाड़ी को, और लगातार आगे आने वाले सालों में हम लोग इसको बनाते रहेंगे। अभी सिर्फ इसी में नहीं है, हमारे फैकल्टी स्टाफ जो है इंटरनेशनल फंडिंग कोलैबोरेशन तक गए हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट हमें मिले हैं इंटरनेशनली। अभी पैनासोनिक जापान से एक प्रोजेक्ट हमको मिला है, हमारे फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम चौरासिया को मिला है, 15 लाख का स्टूडेंट। तो ये प्रोजेक्ट में जो है हम अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, और देखिए आप, इंडिया नहीं एब्रोड तक लोगों को बैठे बैठे काम करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग करवाते हैं, और इससे होता क्या है, स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा मदद बच्चों को मिलता है। ओके, अब हम लोग पूरा 100% हम लोग अपना डिजिटल कंटेंट जो है अपनी खुद की यूट्यूब में डाल चुके हैं, और कन्वेंशनल टीचिंग के साथ साथ हम लोग डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, slowdown of automobile sector was observed in India. How will it survive post COVID-19? अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है डिप कर चुका है और ये कोविड के बाद कैसे सर्वाइव करेगा। आई डू एग्री विथ योर क्वेश्चन स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन करना चाहूँगा इसको। ये कोविड में नहीं हुआ था, ये कुछ महीनों से चल रहा था कि ये स्लैकडाउन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। स्टूडेंट, इसका एक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ना हमेशा जहाँ पे भी आप देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहाँ पे आता है, हर चीज़ का पेस जो है थोड़ा सा लो हो जाता है। अब हम लोग गैसोलीन इंजन से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पूरा दुनिया जो है, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं सारे देश को कि वी नीड टू शट डाउन द गैसोलीन इंजन्स, वी नीड टू स्विच टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये फेज चल रहा है, 2030 तक सारे इंजन को रिप्लेस करना है। ये एक रीज़न हो सकता है स्लो डाउन का। अब आप अगर चिंता कर रहे हैं तो मैं आपको एक डेटा बताऊंगा। एक स्टडी कहता है 2030 तक हर घर में, हर किसी के पास कम से कम 2 4 व्हीलर रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस दुनिया के लिए उस समय में पार्किंग का होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हर किसी के पास 2 व्हीकल है तो फिर वो कहाँ से आए? इट इज़ ड्यू टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इट इज़ ड्यू टू द मैकेनिकल इंजीनियर। हज़ारों पार्ट्स होते हैं कार में, डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग, उसकी असेंबलिंग, उसकी मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एरियाज होती हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं अभी इन दिनों, 30% एक्सपोर्टर था चाइना, सारे बिग चेन्स कंपनीज के। एवरीबडी इज विड्रॉइंग द कंपनीज फ्रॉम दैट कंट्री। नाउ हॉट केक इज द इंडिया, where our government is taking stern action, giving all facilities to the people, to the big companies to invest in India. 2024 में देखिए आप, अब 2020 चल रहा है, 3-4 सालों में देखिएगा, India will be the manufacturing hub in the world. Dear students, we have talent,
वी हैव पीपल, वी हैव मैन पावर एंड वी हैव वेरी गुड एबल गवर्नेंसशिप। इससे हम बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा सारे सेक्टर में बहुत बूम होने वाला है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके। आप कोई भी सेक्टर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिएगा, कंप्यूटर्स देखिए आप लोग, जिसमें सारे कंपोनेंट जो होते हैं, छोटे फैन से लेके बड़े क्या कहते हैं मोबाइल की चिप तक देखिएगा, वो मटेरियल्स में आता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर उसको बनाता है। और अभी मैं सुबह के न्यूज़ देख रहा था कि उसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट हैड ऑर्डर 2 crore ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और 1 लाख जो है वेंटिलेटर्स का ऑर्डर कर चुका है। कौन बनाएगा ये सब चीज़ें? मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा। और इसके अलावा कम से कम हमारे यहाँ पे सारे वेंटिलेटर्स, सारे मास्क, ग्लोव्स, आईसीयू इक्विपमेंट्स सब बनने हैं। अभी हमारा लाइफस्टाइल कोविड-19 के बाद बहुत चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, तो यू डोंट वरी, we'll go to boom the manufacturing industry in India in the coming days because all favorable conditions are there at a line. Okay, thank you. Next question, student. What will be the scenario of foreign jobs? Some student have asked earlier, what will be the scenario of foreign jobs? Students, just forget it right now. You may be knowing wherever we used to love to go to the foreign countries, now you can see उनका हालत क्या है आज की तारीख में। आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स, जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज होने वाली है, हम आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी चीज़ों के साथ जीना पड़ेगा हमें कि हम अब तक नहीं यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजेशन, नाउ इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ ए लाइफ। आप सिनेमा थिएटर जाइएगा, आप मॉल्स जाइएगा, आप कहीं अच्छी जगह जाइए, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन की बहुत ज़रूरी है। उसकी इंजिन्स, मशीन्स मैन्युफैक्चर होने लगी हैं, और घर में भी, बाहर भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब तरह से इसकी ज़रूरत है। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर बहुत बूम होने वाली है, और हमारी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल भी चेंज होने वाली है। तो जॉब्स की कमी बिल्कुल नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल नहीं, वर्सटाइल इन नेचर है ही है, और हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। राइट नाउ नो फॉरेन जॉब्स ड्यू टू दी फोकस ऑन दी हेल्थ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, ड्यू टू द क्राइसिस consumption rate have dipped resulting into huge layoffs. So what is the possibility of jobs in this scenario? I think somewhere I answered this question, but even though I would like to tell you, yes, I agree with you. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है, अभी 6% उसमें स्लैकडाउन आया है, एंड एवरीथिंग इज नाउ स्टॉप्ड, है ना। कहते हैं स्टूडेंट्स, द होल वर्ल्ड is closed for renovation. The whole world is closed for renovation. Keep your finger crossed for a grand opening soon. तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थम गया है, पिछले दिनों से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा आगे वाले दिनों में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं हम अपनी हेल्थ को लेके। और हेल्थ को अगर लेके अलर्ट हुए हैं तो हमें ये सारी चीज़ें, एम्यूनिटीज़, लग्जरीज चाहिए। उसमें हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। मैंने अभी बताया था आपको, वेंटिलेटर्स की यूज़ होने वाली हैं बहुत ज़्यादा, पीपीई का यूज़ होने वाली है बहुत ज़्यादा, आईसीयू के मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा बनने वाली हैं। इसके साथ साथ मैकेनिकल की सारे सेक्टर्स बूम होने वाली, बिकॉज नो बडी एवर वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल। वी ऑल वॉन्ट लग्जूरियस लाइफ स्टाइल दैट ओनली कम्स in the way of manufacturing, and manufacturing is done by mechanical engineering. Don't worry students, a bright and enormous beautiful future is there for mechanical engineers. Okay, next question. Okay, fine. Did mechanical engineering help to fight COVID-19 in any form? Yeah, I answered this. In whole scenario, mechanical engineer was behind the screen. He was helping all the way, whatever the situation was there. He was helping in terms of the ventilators, he was helping in terms of the ICU, he is helping in terms of the bed, cot, equipments, everything.
And not only this, later on also he'll going to help you in the coming days also, because mechanical engineer is a versatile engineer. हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि मैकेनिकल इंजीनियर जो है एवरग्रीन इंजीनियर है, जॉब की कोई स्कैसिटी मार्केट में नहीं है, और वो ऑलराउंडर है। वो जो है वर्सटाइल इन नेचर इसलिए भी है क्योंकि कोई भी काम उसे मिलता है तो वही फॉर्मूला वो अप्लाई करता है। आज सुबह मैं अपनी कॉलीग से, सीनियर कॉलीग से बात कर रहा था। ही टोल्ड दैट सुंदर पिचा इज ए मेटलर्जिकल इंजीनियर एंड होल्डिंग द पोजीशन, a top post position of one of the biggest company in the world. He is a metallurgical engineering guys. Why? Because they have studied a diverse subject in their curriculum so that they can apply their skill anywhere they will go. Wherever they go, they will perform like anything. Okay, fine. Student, another question? Okay. Okay, what are the institute's responsibilities towards this pandemic? Okay, fine. You are asking the institute responsibility in this acute pandemic situation. Students, I would like to, I'll answer your question. Before that, I would like to say you something. As an institute, I'm blessed to be part of this such a huge esteemed organization. See, somebody says the more responsibilities you take, the more responsible you become. It's clearly applicable to our group. We always believe in precaution is better than cure. Before lockdown, we have took a decision to make our students reach safe to their homes. Before order from the government of India to lockdown, we have took a decision. This shows the proactiveness of our institute. And after that, the only institute who came forward to donate around rupees 51 lakhs to the Chief Minister's Relief Fund. Students, it's a huge thing for us to even think in this way. And not only this, students, every day SWISTEC is providing 2,000 food packets to the needy in and around Bhopal, and it's a continuous process, students. This shows the kind of intent we have at SWISTEC, and we have from our management. Apart from this, clear guidelines have been issued to all the students, to the employees, to be safe at home. And apart from that, the institution is taking due care of all these students through tutor guardianship, providing all the material to them sitting at home. They should not feel the classes are in the middle. Day one, we have completed the syllabus through the online digital content, and regularly we are in touch with our students. And not only in the COVID, post-COVID also we have got many number of initiatives to be taken by us. As a Department of Mechanical Engineering head, we had took initiative to develop a sanitizing machine to all the entrants into the SWISTEC, where they can be sanitized properly, and a healthy environment, hygiene environment can be developed among us in the campus. Okay, I hope I have answered your question, student. If any questions is there from you, you can please post it me so that I can answer them.